Students, in the previous class we discussed how magnetic field produced due to the flow of electric current. Due to the flow of electric current, magnetic field generated that was discovered or observed by the Oersted, and we discussed the Oersted experiment, and on behalf of that we say that the B is depending on electric current and depends on the distance. B is directly proportional to electric current and inversely proportional to the distance. Now in this class we are going to start how we can find out the direction of magnetic field. On the behalf of direction of electric current, how we can find that? So there are some rules to find out the direction of magnetic field. So the very first rule is right hand thumb rule. First of all, we have to confirm our left and right, because when we start doing the equations, then some problems was there, means confusion are there, which is one is left and one right. So first of all, you have to confirm your hand, this one is left or this one is right. As your side it is right and this one is left. Okay, so right and left, पहले हमें इस चीज को confirm होना है, then we have to start the rules. So first rule is right hand thumb rule. So we have to use the right hand. This rule is right hand thumb rule. This is right hand thumb rule. We have to use this rule for the straight current carrying conductor. This rule is used for straight current carrying conductor. Suppose this is the straight current carrying conductor, and we are holding that straight conductor in right hand in such a way that thumb, because our thumb may be straight, it is straight, and fingers is like twisted in form. Thumb is in the direction of electric current and the fingers will represent the direction of magnetic field. So statement of this rule is, if we hold a current carrying conductor in such a way that thumb is in the direction of electric current and fingers represent the direction of magnetic field. तो किसी भी डायरेक्शन के लिए स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आप इस रूल को यूज कर सकते हैं. वी कॉल दिस रूल राइट हैंड थंब रूल. सो इसका स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे तो आप इसको स्टेटमेंट को मेंशन करके अब आप वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. जरा इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें कैसे हम इसको यूज करेंगे. सपोज जब भी आपको फाइंड आउट करना हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाय यूजिंग दिस रूल, वी ऑलवेज अज्यूम दैट नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ अस. हम एग्जाम में ये डिस्कस नहीं करने, हम ये नहीं सोचने लगे कि हमारा नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा था, हमारे घर का कौन सा डायरेक्शन था, वट एवर. नो, हमें हमेशा क्या करना है, जिस भी पोजीशन में आप हैं आपको क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ यू इट इज़ नॉर्थ एंड बैक साइड इट इज़ साउथ. नॉर्थ, साउथ एंड राइट साइड वी हैव टू कंसिडर एज द ईस्ट एंड लेफ्ट साइड इज वेस्ट. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. आपकी तरफ से देखें तो आपके साइड ये वाला हुआ नॉर्थ, then back side is south, this is east and this is west. Okay, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. जब भी हमें अपवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा, इट इज वर्टिकली अपवर्ड एंड दिस वन इज वर्टिकली डाउनवर्ड. इफ हमें ये चीजें क्लियर हैं, देन वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब आपसे कहा जाए इसके बिहाफ पर कि सपोज अ करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आपकी डायरेक्शन के बिहाफ पे बता रहा हूँ, इट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. आपके लिए ये नॉर्थ हो गया है, आपके लिए ये साउथ हो गया है, आपके लिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. तो करंट का डायरेक्शन, ये जो ब्लैक नोटेड है, ब्लैक जो पॉइंट है, इसके लिए हम बोलेंगे इट इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. मीन्स करंट का डायरेक्शन कैसा हुआ, साउथ टू नॉर्थ. दिस इज साउथ टू नॉर्थ, दिस इज द east point, this is the west point, this is vertically upward point, this is downward point. तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड thumb is in the direction of electric current, then fingers will represent the direction of magnetic field. It means magnetic field is in the circular formation like that, concentric circles like that. So अगर आपको फाइंड आउट करना है कौन से पॉइंट के लिए, द पॉइंट विच इज अबाउ दिस कंडक्टर. Suppose we have a conducting wire and electric current is flowing from south to north and we have to find the
direction of magnetic field at the point which is above the conducting wire. So according to this rule, you can see that the direction of fingers, it will represent the direction of magnetic field. It is directed towards the east, north, south, east, west. So you can see that the fingers are pointed towards the east. तो इस वाले पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में हुआ? ईस्ट डायरेक्शन में. सेकंड पॉइंट लेते हैं. सेकंड पॉइंट हमने कहा कि इट इज एट ईस्ट डायरेक्शन, इस वाले पॉइंट पर. तो हमारा फिंगर्स इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे? टेंजेंट इज डाउनवर्ड. टेंजेंट की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड. यानी इस पॉइंट पे देखेंगे तो फिंगर्स कैसे जा रही हैं? डाउनवर्ड. इट मीन्स अ पॉइंट विच इज एट ईस्ट डायरेक्शन, magnetic field is vertically downwards. Magnetic field is vertically downward. And for the point which is below that conducting wire, this conductor, then magnetic field is towards, this one is west. So the direction is towards west. तो फिंगर्स की डायरेक्शन को करते जाएं. जिस पे पॉइंट पे लेंगे इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें. इस वाले पॉइंट पे देखा टेंजेंट कहाँ गया? डाउनवर्ड. इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे टुवर्ड्स वेस्ट, और दैट पॉइंट इज ऑलरेडी इन वेस्ट. वेस्ट पॉइंट पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो राइट हैंड, दैट फिंगर्स विल बी वर्टिकली अपवर्ड्स. तो इसके चारों तरफ का अगर कोई भी पॉइंट आपसे कंसिडर किया जाए तो यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो you can find out. So statement for that rule, we can write that if we hold a straight current carrying conductor in such a way that thumb is in the direction of electric current, then fingers will represent the direction of magnetic field. If we hold a straight current carrying conductor in right hand in such a way that thumb is in the direction of electric current, then fingers will represent the direction of magnetic field. Clear? So this is the basic rule for straight current carrying conductor. Straight current carrying conductor के लिए ही डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव मोर टू रूल्स. वैसे दोनों रूल्स एक जैसे ही हैं, एक दूसरे से रिलेट किया हुआ है. बस ये समझ लें कि एक रूल है जिनको स्विमिंग आती है उनके लिए, एक रूल है जिनको स्विमिंग नहीं आती है उनके लिए. तो जिनको स्विमिंग आती है उनके लिए एम्पियर स्विमिंग रूल. व्हाट इज दैट? नेम ऑफ साइंटिस्ट इज एम्पियर. तो दिस इज एम्पियर स्विमिंग रूल. एम्पियर स्विमिंग रूल. व्हाट इज एम्पियर स्विमिंग रूल? If a person is swimming in the direction of electric current, हमने कहा कि करंट का डायरेक्शन ऐसा है और वो पर्सन अगर स्विम कर रहा है तो मोशन ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, कोई भी पर्सन है जो स्विम कर रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट लेग. तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर, इफ अ पर्सन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, then the motion of his left hand represent the direction of magnetic field. So this is the direction of magnetic field. We represent the magnetic field by capital B. So left hand of that person, it is representing the direction of magnetic field. This is Ampere swimming rule. This rule is known as Ampere swimming rule. तो statement आप दे सकते हैं, if a person is swimming in the direction, if a person is swimming in the direction of electric current, then the motion of his left hand, represent the direction, and the motion of his left hand represent the direction of magnetic field. Okay, so this is swimming rule, Ampere swimming rule. ओके, और मैंने कहा था कि इसी का ही सब्सटीट्यूट जिनको स्विमिंग नहीं आती, कि स्विमर्स, हाउ कैन द स्विमर यूज द लेफ्ट और राइट हैंड, व्हाटएवर, तो उनके लिए एक अगर सिंपल सी इसी चीज को कन्वर्ट करके फॉर्म किया गया है. वी टेक दिस इज नॉर्थ, पेपर पे अगर लिखनी है तो ये नॉर्थ, इधर कौन सा लेंगे? ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ. तो इसी का मॉडिफिकेशन करें, means current is flowing from south to north. It means electric current is flowing from south to north. So it is SN. Electric current is flowing
from south to north, SN. Then according to that, magnetic field will be towards west, left of that. So if current is flowing from south to north, then the direction of magnetic field will be towards west. This rule is known as snow rule. क्या नाम दे देंगे इसको? स्नो रूल. तो अकॉर्डिंग टू स्नो रूल, यानी जो स्विमर्स की जगह अगर आप इसको यूज करते हैं स्नो रूल को, तो आप क्या बोलेंगे? इफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट डाउन दैट, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, if electric current is flowing from south to north direction, then direction of magnetic field is towards west. Then the direction of magnetic field is towards west. If current is flowing from south to north, then the direction of magnetic field is towards west, and you can draw this diagram. This diagram is similar for both the rules. First is Ampere swimming rule, and secondly you can also use for the snow rule. So snow rule we can define in this way. Okay, so these three rules we use for the straight conductor. तीनों रूल्स हम किसके लिए यूज़ करेंगे? स्ट्रेट कंडक्टर के लिए यूज़ करेंगे. स्ट्रेट कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन आपको पता होगा, और करंट की डायरेक्शन के बिहाफ पर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे. फाइन. अब अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर ना हो, ओके, दीज रूल्स आर यूज फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर. सपोज स्ट्रेट कंडक्टर की जगह आपको क्या गिवन है? आपको कॉइल अगर प्रोवाइड किया जाए, सपोज वी हैव अ कॉइल लाइक दैट, और इन कॉइल्स में करंट कैरिंग कॉइल्स, करंट का डायरेक्शन, इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन हमने कहा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज क्लॉकवाइज, एंड इन दिस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Okay, and if you want to find out the direction of magnetic field, उसको find out करें उससे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज है कि मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट में आप कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे मूव आउटसाइड द मैग्नेट, नॉट टू साइड, नॉट टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. यानी अगर आप देखें तो किसी मैग्नेट में नॉर्थ पॉइंट से, यानी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं. दे लीव द मैग्नेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर फ्रॉम द साउथ पोल. तो अगर देखा जाए तो मैग्नेट की जो डायरेक्शन अगर आप लेंगे नॉर्थ, आउटसाइड दैट नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे. तो अगर आपने कभी किसी के लिए कॉइल के लिए अगर बात करना है, तो जैसे स्ट्रेट कंडक्टर में तो हमने थंब को लिया था. थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? करंट की डायरेक्शन में. पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो थंब से हम डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि थंब स्ट्रेट होता है जबकि ये क्या है? फोल्डेड है. तो फिंगर्स, यानी कि इस रूल को हम बिल्कुल रिवर्स कर दें, यहाँ अब क्या होगा? फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेंगी? करंट की डायरेक्शन में कौन होगा? फिंगर होंगी. एंड द स्ट्रेट थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो इन दिस केस आपको मैग्नेट का केस पता है. अब जरा देखें, आपने कहा कि हाँ फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, थंब कहाँ जा रहा है? इनवर्ड. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. एंड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड वी रिप्रेजेंट बाय द क्रॉस. सो this cross is used for the inward magnetic field. So in this case magnetic field is inward, and इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एक और चीज रिप्रेजेंट करता है. आपने कहा कि इनवर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका क्या मतलब हुआ? हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कौन से पोल से करती हैं? दे एंटर फ्रॉम द साउथ पोल एंड दे एग्जिट फ्रॉम द नॉर्थ पोल. सो अगर आप बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हुआ, इसका मतलब फील्ड लाइंस इज एंटरिंग फ्रॉम दैट पॉइंट.
इस वाले पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, तो ये वाला जो पोल होगा, कौन सा पोल होगा, इट विल बी साउथ पोल. सो यू कैन मेंशन दैट इट इज साउथ पोल. और अगर आप एस लिखेंगे ना, या जैसे ही आप एस बनाएंगे आप देखेंगे कि एस का एरो और करंट का एरो मैच करेगा. तो अगर आपने देखा कि किसी कॉइल में, सपोज दिस इज द कॉइल, करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज. अगर आप क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो आपने देखा क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन आपने फिंगर से रिप्रेजेंट की. दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, और इनवर्ड मीन्स दिस पोल विल बिहेव एज साउथ पोल. तो जब भी आप किसी कॉइल को देख रहे हैं और करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज आपको नजर आ जाए तो आप कह देंगे इट इज साउथ पोल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग फ्रॉम दिस पोल. ओके, जरा दूसरे वाले की बात करें. करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक, राइट हैंड, क्या किया, फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थंब इज आउटवर्ड. इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड हियर, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आप लेंगे यहां कैसा हो गया, आउटवर्ड. वी रिप्रेजेंट द आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बाय अ डॉट. दिस इज आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. तो राइट हैंड बड़ा यूज का है हमारा ना. तो राइट हैंड से हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड. यहां देखा कि मैग्नेटिक फील्ड एंटरिंग इन दैट, इट मीन्स दिस पोल विल बी अ साउथ पोल. इस वाले केस की अगर बात करेंगे तो इस वाले केस में अगर आप लेंगे तो यहां करंट की डायरेक्शन आपने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आपने लिया, मीन्स फील्ड लाइंस इज एग्जिटिंग दैट. सो कौन से पोल से एग्जिट करती हैं, नॉर्थ पोल से. इसका मतलब ये नॉर्थ होगा. और आप यहाँ पर एन मेंशन कर दें. जैसे ही आप एन मेंशन करेंगे, इस एन की अगर आपने बात करी है तो इसका नॉर्थ पोल जो है इसका एरो मैच करेगा, इसका एरो मैच करेगा, दोनों एरो मैच कर रहे हैं. इसका मतलब दिस पोल विल बी एज, वी कैन टेक दिस पोल एज अ नॉर्थ पोल. तो ये हमारे लिए कैसा होगा, नॉर्थ पोल. बट दिस रूल, राइट हैंड थंब रूल जो हमने यूज किया था, उसकी जगह आप कॉइल के लिए इसको रिवर्स लेके चले. मीन्स यहां आपको करंट का डायरेक्शन फिंगर से रिप्रेजेंट करना है और थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर. सो दिस इज फॉर द कॉइल. तो आप यहां इसको क्या लिख देंगे, फॉर कॉइल. ओके, फॉर कॉइल, और फॉर कॉइल मेंशन करके आप इसको नोट कर सकते हैं. तो जैसे आप नोट करेंगे आप अब इस कंडीशन में होंगे कि यू कैन शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द कॉइल्स. क्लियर. अब एक और रूल, एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग. हम फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट है उनके दो हैंड्स थे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड. आपको भी पता है सबके ही होते हैं लेफ्ट और राइट, पर ही यूज बोथ द हैंड्स, left hand as well as right hand. So there are two rules which represent the Fleming's left hand and right hand rules. Both rules are very important for this chapter, magnetic effect of electric current. Left hand is used to find out the direction of force. Force का direction को find out करने के लिए हम use करते हैं किसको, Fleming's left hand rule. और एक current जिसको हम कहते हैं induced current, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, जो हम कहते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो फोर्स की डायरेक्शन को जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो दैट रूल इज यूज टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. बिकॉज इन इलेक्ट्रिक मोटर वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट एंड मोटर रोटेट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो आप करंट आप प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर होगा, तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होता है. एंड दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हम प्रोड्यूस करते हैं जनरेटर में. इलेक्ट्रिक जनरेटर आपने नाम सुना होगा. जनरेटर में हम क्या करते हैं, एक बार उसको रोटेट कराते हैं. रोटेट कराने का मतलब उसका आर्मेचर कॉइल जो होता है, उसका कोइल जो होता है उसको रोटेट कराते हैं. इसका मतलब हम फोर्स वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं.
फोर्स आपका वहां होगा, मैग्नेटिक फील्ड वहां होगा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। यानी हमारे पास जिन रूल्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा अगर हम बात करेंगे दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दोनों रूल्स को कंपेयर करते हुए इसको हम टेबलाइज करें तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा कि हम दोनों रूल्स को क्या कर पाते हैं, कंपेयर भी कर लेते हैं, और हमें पता भी होता है कि कौन से रूल से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या हमें यूज करना होता है। जरा रूल्स को देखें तो रूल्स को समझने के लिए लेफ्ट हैंड रूल को पहले स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड पहले बनाना सीखेंगे कैसे हम यूज करेंगे। दिस इज द फर्स्ट फिंगर, सो स्ट्रेट लाइक दैट, कभी यूं नहीं लेना, स्ट्रेट लाइक फर्स्ट फिंगर, दिस इज द फर्स्ट फिंगर, दिस इज thumb, and we have to use the middle finger, first finger, middle finger and thumb. We have to keep them mutually perpendicular. बनाने का स्टाइल वापस देखें, स्ट्रेट, आप क्या करेंगे, थंब को इसके परपेंडिकुलर और उसके बाद फिंगर को क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर, मीन्स बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों एक दूसरे के कैसे होने हैं, परपेंडिकुलर होने हैं। सिमिलरली फॉर द राइट हैंड, again first finger straight like that, then thumb and middle finger like, fine। इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब भी हम घर पर हैं तो अभी घर पर है कि ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फर्स्ट फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर लाइक दैट बना लें ऐसे। इसको बनाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, करके भी देख सकते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो हमने कहा कि ये ऐसे बना के रखो, तो अब ये कौन सा फिंगर या थंब किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में बात करें। दोनों का जो फर्स्ट फिंगर है, चाहे वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो, चाहे वो राइट हैंड रूल हो, वी आर टेकिंग द फर्स्ट फिंगर। दिस फर्स्ट फिंगर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स इन बोथ द केसेस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोवाइडेड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोवाइडेड। मैग्नेटिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको प्रोवाइड ही होगा। तो फर्स्ट फिंगर दोनों के लिए क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। सेकंड की बात करें, मिडिल फिंगर, ये जो मिडिल फिंगर आप यूज कर रहे हैं, फॉर दिस मिडिल फिंगर, this middle finger is used to represent in the case of left hand electric current, and thumb, it is used to find out the direction of force or motion। जिधर फोर्स लगता है उधर ही बॉडी क्या करता है, मूव करता है। तो आप देखें लेफ्ट हैंड की पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद राइट हैंड पे भी चले जाते हैं। फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then thumb will represent the direction of force or motion। उसका स्टेटमेंट भी हम इसी तरह से मेंशन करेंगे, दोनों का स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन फिलहाल हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर से, मिडिल फिंगर इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। एंड फॉर राइट साइड, राइट हैंड में हमने कहा कि हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स और मोशन, ये हमें गिवन होगा। इसका मतलब हमें कौन कौन सा डायरेक्शन पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होगा, फोर्स का डायरेक्शन पता होगा, और हम फाइंड आउट करते हैं इससे, दैट इज नॉन एज इंड्यूस्ड करंट। दिस इज इंड्यूस्ड करंट, मीन्स दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो वेरी क्लियर। अब स्टेटमेंट की बात करें, इस टेबल को आप फॉर्म करेंगे, स्टेटमेंट आप नोट करें। सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या स्टेटमेंट होगा, इफ वी कीप फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ यू होल्ड फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड mutually perpendicular to each other, mutually
perpendicular to each other, and first finger representing the direction of magnetic field, first finger representing the direction of magnetic field, middle finger is in the direction of electric current, middle finger is in the direction of electric current, then thumb will represent the direction of force or motion. एक बार रिपीट कर रहे हैं. If first finger, middle finger and thumb of left hand, first finger, middle finger and thumb of left hand are keep mutually perpendicular to each other. First finger represent the direction of magnetic field, middle finger represent the direction of electric current, then thumb will represent the direction of force and motion. Thumb will represent the direction of force and motion. Clear? And in right hand rule, Fleming's right hand rule, write down that Fleming's right hand rule. Same, but इसमें क्या फाइंड आउट करना है? इंड्यूस करंट. जिसको फाइंड आउट करना है वो सबसे लास्ट में लेना है. जैसे हमें यहाँ फोर्स और मोशन फाइंड आउट करना था तो इस वर्ड को हमने सबसे लास्ट में लिया. वैसे हम क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो वी विल टेक इट एट द लास्ट. सो राइट डाउन दैट फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड. फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ right hand are keep mutually perpendicular to each other, keep mutually perpendicular to each other, keep mutually perpendicular to each other. First finger represent the direction of magnetic field, first finger represent the direction of magnetic field, and thumb is in the direction of force or motion. Thumb is in the direction of force and motion. Thumb is in the direction of force and motion. Then middle finger will represent the direction of middle finger represent the direction of induced current. If first finger, middle finger and thumb of right hand are kept mutually perpendicular to each other, first finger is in the direction of magnetic field, thumb is in the direction of force, representing the direction of force and motion, then middle finger will represent the direction of induced current. So last में हमने जिसको find out करना है उसको last में mention करेंगे. तो these are the rules to find out the direction of magnetic field. If you have the value of electric current का direction हमें पता हो, इनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये दो रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो आप इस टेबल के जस्ट नीचे स्टार लगा के मेंशन कर लेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल is used to explain the working of electric motor. Fleming's left hand rule is used to explain the working of electric motor, and Fleming's right hand rule is used to explain the Fleming's right hand rule is used to explain the working of electric generator. Is used to explain the working of electric generator. So these are the rules, और especially Fleming's left hand and right hand rule, they are very important. और इसको याद रखिएगा, ऐसे बनाना है. तो आज का हमारा जो बाय होगा वो